Hello students, I hope you are all doing well and welcome to the mathematics class. So in our previous class we have learnt about the magic square and I had given you a homework in which and I thought that had you had done it. Okay, so I am just going to give you a hint and the final answer of this question of your homework. तो हमको ये बताना था कि ये मैजिक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ मैजिक स्क्वायर, दिस इज अ मैजिक स्क्वायर. सो हमको मालूम है कि मैजिक स्क्वायर में रोज कॉलम और डायगोनल के जो नंबर्स है उनका सम सेम होता है. ओके, तो उसके बेसिस पे हमको ये जो ब्लॉक्स है मिसिंग, जिसमें नंबर मिसिंग है, ओके, इसमें हमको नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग फिल करना था. तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इसका मैजिक स्क्वायर जो है उसमें सम क्या है. तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस पीरियड दैट वी हैव टू चेक दैट डायगोनल रो या और कॉलम in which all numbers are present in it. Okay, so first we will look over all our rows. This is either, it's not either, and it is also either not. Then we will look our column. This is not a full column, this is also not, either not, neither this and not this. Then we will look our column, diagonal. This has this missing spot here, and then this diagonal. So this diagonal has all elements, so we will look this diagonal only here now and perform the sum operation of these elements, these numbers, and then according to that sum we will find our missing number. So the sum is 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 13 28, 28 minus 3 25. ओके, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये होमवर्क था आपके लिए. मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ हिंट, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट एंड द फाइनल आंसर. ओके, सो द मैजिक स्क्वायर सम हैज़ the magic square sum is 25. So this means that all of these rows and columns adds up and gives the total sum. Okay, similar. So first we will look our row 1. So I will denote as R1, R2 is row 2, row 3 is R3, row 4 is R4, row 5 is R5. Similarly, column 1 is C1, column 2 is C2, column 3 is C3, column 4 is C4, column 5 is C5, and then we have D1 is diagonal 1 and D2 is diagonal 2. So in R1 we already know that the sum is 25. So first we will add these four numbers. 7 minus 7 gives you 0, 9 plus 16 gives you 25. So already sum is 25, and then you have to add this missing number such that the sum is 25. Now what number should I add in 25 so that I get the sum 25? So the answer is 0. I have to add 0 here. Then we will look to R2 or row 2. I know that this row numbers adds up and gives me 25 as a sum. So I will just add these numbers as 6 plus 8 14, 14 plus 15 29, 29 minus 3 gives me 26. Now I am getting here 26 plus something number which gives me 25. तो 26 में मेरे को कैसा क्या नंबर ऐड करना चाहिए कि 25 होगा.
तो मैंने आपको पिछले जब मैजिक स्क्वायर में हम पिछले पीरियड में जब सॉल्व कर रहे थे मैजिक स्क्वायर, उसमें मैंने बताया था कि हम अगर आगे है, ओके, नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था डिनोट करके कि हम अगर आगे है प्लस पर और हमको पीछे जाना है, तो हमको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो एक स्टेप पीछे जाना मतलब हम नेगेटिव में जाना है, मतलब माइनस में जाना है। तो अब अगर मेरे को 26 पे 25 पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा, मतलब ये एक स्टेप पीछे मेरे को इस तरह जाना होगा। तो जो नंबर होगा वो -1 होगा। 26 - 1 gives me 25. So now we will move to our to the R4 because we have only two numbers in R3, so we will move to the R4 or row 4. So the row 4 sums up with gives me, so the row for elements or numbers should sum up and give me the sum of total 25. So I add this number. 2 plus 4 gives me 6, 6 plus 11 17, 17 plus 13 gives me 30. So the sum is 30 plus this missing number which gives me 25. So now I am sitting at 30 place. Okay, I am sitting in 30 place and I want to go at 25 place, 25 number. How should I go? I can go by 1 2 3 4 5 by moving backwards 5 steps to reach at 25. So I have already told you that if we go towards backward, we are decreasing our numbers. Okay, we are shifting backwards, so this should be -5. So this number should be -5. Now when we move to the R5, we observe that there are two numbers missing, so we cannot perform a sum operation here at now. Okay, only now. So we will move to the column points. First we will go to the C3 column 3 because it has 4 numbers out of 5. Okay, so it should adds up and gives me 25 as sum. So I will add this number. -7 - 1 gives me -8. -8 plus 11 gives me +3. +3 plus 5 gives me 8. So I am getting here 8 with this missing number. So how should I add? What number should I add? Should I add in 8 to get 25? So the answer should be I should add 17 because 17 plus 8 gives me 25. Okay, so this number should be 17. Okay, then we move towards our fourth column, C4. So C4 should also gives me 25 sum, so I should add it. 13 plus 6 gives me 19. 19 plus 0 gives me 19. 19 minus 6 gives me 13. So I have to add a number in this 13 so to get 25. So the answer should be 12. Okay, 13 plus 12 gives me 25. So we should write here as a 12. Okay, now अब अगर हम देखें कि R5 जो है इसमें मेरे पास 4 नंबर्स प्रेजेंट मिल गए मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं R5 में सम ऑपरेशन करूँगा। सम ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 plus 17 gives me 27. 27 plus 1 gives me 28. 28 minus 6 gives me 22. And what number should I add in this 22 so as to get the sum 25? The answer should be 3. So I will write here 3, and then I will go to this C1 column 1. Okay,
Similar process, I want the sum 25 with this 5 number, so I will add this. 15 plus 9 gives me 24, 24 plus 3 27, 27 plus 2 29, so 29 plus this missing number which gives me 25, and the answer is -4. Okay, now I'm just speeding up. I hope you are getting it. Then at last we have C2. So 16 minus 3 gives me 13, 13 plus 4 gives me 17, 17 plus 10 gives me 27. So what should I add in this 27 to get the sum 25 here? So the answer should be -2. I have to go in the backward. ओके, मेरे को नंबर लाइन में पीछे की तरफ जाना होगा, और कितने पीछे जाना होगा? 2 स्टेप. सो in backward direction 2 steps, so backward 2 steps will gives the 2 and the backward will give me minus sign. So this is your answer of the homework. Okay, now we will come to our next topic. Now we will look the properties of addition and subtraction of integers. अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर्स के बारे में बात करी, उनका अभी तक हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है. अब हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का ऐसा है कि है ना, अगर हम कोई नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्शन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, तो कुछ है ना ट्रिक्स होती है. ओके, कुछ है ना ये प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ लग जाती है. तो प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, उस सॉल्यूशन को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म जब करते हैं हम, उसको इजी कर देती है ना. तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़. तो इसी तरह पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. मेरे पास ये एक पेंसिल है. ओके, आपके सबके पास में पेंसिल होगी, मेरे पास भी एक पेंसिल है कुछ इस तरह की. ओके, ऐसे ही मेरे पास ये एक है, यहाँ पे मैंने रखी, ऐसे ही करके 2 3 4. ओके, ऐसे मेरे पास 4 पेंसिल है. ठीक है, अब पता नहीं आपको पेंसिल दिख रही कि नहीं दिख रही. आई एम नॉट ए वेरी गुड ड्रॉयर, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग. ओके, तो अभी जैसा भी आपको लग रहा है आप मान लीजिए. मेरे को तो ये पेंसिल लग रही है, तो मैं इसको पेंसिल लिख देता हूँ, है ना. तो मैं यहाँ पे एक 4, मेरे पास है ना 4 पेंसिल है. फिर मेरे को है ना लगा कि नहीं यार ये अच्छी नहीं है, मेरे को दूसरा लेके आना चाहिए. तो मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से 3 पेंसिल और ख़रीद ली. आई हैव बॉट 3 पेंसिल from the market. Okay, so now at home how many pencil I have? This is again a pencil. So what should I do? I have to add this pencil, the old pencil with the new pencil, so to get the total pencil at my home. So how many pencil I have? This 4 gives, this 4 with this 3 gives me 7. 1 2 3 4 5 6 7. अब आप बोलोगे सर आपने तो इनकी नोक तो बनाई नहीं, इनको छीला ही नहीं आपने, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ. ये मेरी इरेज़र से मैंने इरेज कर दिया, तब ये लिखने के लिए रेडी हो गई. ओके, तो इनको थोड़ी जैसे मैंने डिज़ाइन बनाई, इनको डिज़ाइन बना देता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि सर ये तो पेंसिल लगी नहीं रही है आपने जो बनाई है ना. सो दिस इज अगेन अ पेंसिल. सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ कि ये जो 4 पेंसिल है, ओके, अगर इस 4 में से मैंने ये 3 पेंसिल, ओके, ये तो पहली कंडीशन. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई आपको. अब क्या करता हूँ,
मैं एक कंडीशन और लेके चलता हूँ, दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे पास अगेन ये पेंसिल है, ओके। आप सब स्कूल में पेंसिल लेके आते हो, है ना? हाँ, लेकिन इतने सारे नहीं लेके आते हो, ठीक है। तो सपोज़ कभी किसी भी आपके पास में, ठीक है, आपके पास में ये इतनी पेंसिल है स्कूल में, 1 2 3 4 5 दिस 5 पेंसिल, यू हैव दिस 5 पेंसिल एट योर स्कूल, ओके। फिर आपका फ्रेंड आता है एक आपके पास में, वो बोलता है कि मेरे को पेंसिल चाहिए। कितनी पेंसिल चाहिए? तो आपने पूछा कितनी पेंसिल चाहिए, उसने पूछा तुम्हारे पास कितनी पेंसिल है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी पेंसिल है, तुमको कितनी चाहिए? तो उसने बोला मेरे को 2 पेंसिल चाहिए। तो अगर वो तुम्हारे पास, आपके पास में से ये 5 पेंसिल में से 2 पेंसिल ले गया, तो कितनी पेंसिल बचती है आपके पास में? तो मतलब क्या है, आपके पास में जो पेंसिल थी उसमें से 2 पेंसिल कम हो गई, मतलब कि माइनस हो गई, है ना? इसी तरह से कुछ हुआ, तो आपके पास 3 पेंसिल बचती है, ओके। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पेंसिल क्यों खेल रहे हैं आज, सर को तो पढ़ाना चाहिए, सर पढ़ा क्यों नहीं रहे आज, पेंसिल क्यों खेल रहे हैं? आज पेंसिल हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि मेरे को आपको बताना है प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, जब मेरे पास 4 पेंसिल थी, मैंने फिर मार्केट गया, 3 पेंसिल और ख़रीदी और मेरे पास 8 पेंसिल हो गई, ओके। सिमिलरली आपके पास 5 पेंसिल थी, आपने आपके फ्रेंड को 2 पेंसिल दे दी, आपके पास 3 पेंसिल थी। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूँगा, मेरे पास पेंसिल थी, मैंने उसमें और एक पेंसिल और ऐड कर दी, कुछ पेंसिल ऐड करी, तो मेरे पास पेंसिल ही है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैंने पेंसिल ऐड करी और मेरे को पेन मिल गया हो, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। पेन तो मेरे को बिल्कुल नहीं मिला है, पेंसिल ही मिली है। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करता हूँ, तो मेरे पास पेंसिल थी, मैंने उस पेंसिल में से कुछ पेंसिल किसी को दे दी, तो भी मेरे पास रही तो पेंसिल ही है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये पेंसिल नहीं बना, स्केच पेन बन गए। स्केच पेन तो नहीं बने ना, अभी भी है पेंसिल ही, जिससे हम ड्रॉ करते हैं, है ना? ऐसे कुछ भी लकीरें खींचते हैं, कुछ भी लाइंस कर्व्स बनाते हैं, तो रही तो हमारे पास ही पेंसिल ही है, ओके। तो अगर हम इसको देखें, तो मैंने क्या करा, मैंने पेंसिल में पेंसिल ऐड करी, तो मेरे को आंसर रिजल्ट पेंसिल मिला, पेन नहीं मिला, है ना? तो और फिर ये तो एडिशन ऑपरेशन की बात करी। अगर मैं सब्ट्रैक्शन भी करता हूँ, मतलब कि अगर मैं पेंसिल में से अगर किसी पेंसिल कम भी करता हूँ, पेंसिल में से मैंने पेंसिल माइनस करी, तो भी मेरे पास रही पेंसिल ही, है ना? मतलब ये कि अगर मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कोई सी भी 2 नंबर्स या किसी भी चीज़ पे, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो उसी के ऊपर आ रहा है, उसी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ नेचुरल नंबर्स का, मैं इंटीजर, अभी हम इंटीजर्स की नेचुरल नंबर्स का लेते चलो, ओके। नेचुरल नंबर का, ठीक है, मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए 5 और 4। अगर मैं if I add this to the natural numbers, I am getting 9. So this is a natural number, this is a natural number, so this is, तो ये नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? 9, 5 is a natural number, 4 is a natural number, so 9 should also be a natural number. यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है कि अगर पेंसिल में पेंसिल ऐड करूँगा तो मेरे को पेंसिल ही मिलेगा, मेरे को पेन नहीं मिलने वाला है, ओके। तो अगर मैं एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करूँगा तो मेरे को हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को ये मिल रहा है कि मेरे को एक और नेचुरल नंबर मिल रहा है, ओके। मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पेंसिल में से पेंसिल माइनस करने पे मेरे को पेंसिल ही मिल रहा है, मेरे को स्केच पेन कभी नहीं मिला, है ना? स्केच पेन नहीं मिला है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को नेचुरल नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है, इसका हम बाद में देखेंगे।
So the point I'm getting here is that whatever you add a number in it, if we have two same kind of number, then the final result also should be the same kind of number. Okay, so if तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात करी मैंने, इसी तरह होल नंबर्स का भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये होल नंबर भी है ना। सो तो अब इसका कंक्लूजन क्या लिखूंगा, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, अभी मैंने आपको पेंसिल का एग्जांपल दिया था, तो अगर आप होल नंबर की जगह पेंसिल रखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द सम ऑफ एनी टू पेंसिल इज अगेन अ पेंसिल, इजंट इट। दो पेंसिल को ऐड करूँगा तो पेंसिल मिलेगा। इसी तरह अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करूँगा तो मुझे हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर। ओके, क्लोजर, so this is a closure property. So we are learning here but we are learning about the integers, not the whole numbers. So I should come to the integer part. Okay, so now I'm taking two integers. Let's suppose I have example here. I am taking two integers. 18 is an integer and 39 is an integer. If I perform addition operation here with this, I am getting 57. So 18 is an integer. This is an integer. 39 is an integer. 57, is it integer or not? 57 is also an integer. Okay, just like the example I have given you about the pencil. Okay, so अब ये तो है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स का। -63, इफ आई ऐड -63 with 51, -51, what should I get? I am getting -114. Okay, -63 is an integer, -51 is also an integer, so the sum of these two number is also an integer. So this property is called the closure property. Okay, कि अगर मैं दो नंबर्स को, कोई से भी दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा उसी काइंड ऑफ नंबर मिलेगा। ओके, अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है और मैं उसमें 20 रुपीज़ को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 30 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 30 रुपीज़ हुए ना, 30 पैसे तो नहीं हुए, मेरे पास रहा है तो वही क्वांटिटी। ओके, फिर ये तो मैंने लिखा दो नेगेटिव इंटीजर्स का। अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर ले लूँ तो क्या फिर भी ये रहेगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को मैंने लिया तो भी मेरे पास एक इंटीजर ही मिला। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सिमिलरली इफ आई टेक वन नेगेटिव इंटीजर, वन पॉजिटिव इंटीजर, आई एम गेटिंग हियर again an integer. So what should we say that we can say that thus integers are closed under addition. ओके, क्लोज मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन पार्ट में करता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वापस। 18 - 15
मैं दो इंटीजर्स का ऑपरेशन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, मुझे क्या मिलता है 3, तो ये भी इंटीजर है। सिमिलरली अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को मिलता है -36, तो ये भी एक इंटीजर है। ओके, सो आई कैन से दैट that thus integers are closed under in which operation? You have to mention it, which operation I am performing here. In this I have performed the addition operation, so I have written here addition operation. So but in this I have applied the subtraction operation, so I should write subtraction. Okay, so this is about the closure property. ओके, अब आज के होमवर्क के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 का मैं जो पहला क्वेश्चन है मैं चाहूँगा कि आप ये ट्राई ज़रूर करें। इसमें क्या करना है आपको, राइट डाउन द पेयर ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -6। आपको दो ऐसे इंटीजर्स को चूज़ करना है जिसका सम -6 हो। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल में देता हूँ, इंटीजर्स लेना है, मैंने ले लिया एक इंटीजर -1, दूसरा ले लिया -5, तो -1 -5 कितना हुआ, जैसे कि देखो बताता हूँ आपको, मैंने पहला इंटीजर लिया -1, दूसरा ले लिया -5, इनको मैं अगर सम करना है, ठीक है, हमको यहाँ पे मेंशन है, हमको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सम करना है ना, तो हमको क्या करा है, मैंने यहाँ पे मैंने सम ले लिया, सम लेने के बाद -1, दिस प्लस and this minus get multiply and I have minus sign here, sorry, -5, so minus minus -6. okay, so this is a one example. आपको ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेके मेरे को बताना होगा कि क्या है, ठीक है, सम -6, इसी तरह डिफरेंस बताना है -5, थर्ड का सम 1 बताना है कि ऐसे दो इंटीजर्स ले लूँ मैं कि जिनका सम 1 हो। ओके, ध्यान रखना सम 1 चाहिए, सम मतलब ऐड कर रहे हैं हम, इसी तरह डिफरेंस -1। ओके, तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, इसके चारों पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी तक हमारी आज जो है 6th क्लास है, 6th क्लास नहीं मिलना चाहिए मेरे को, 6th पीरियड है, 7th क्लास की मैथमेटिक्स का आज 6th पीरियड है। और ठीक है, हमने 6 लेक्चर मैंने ले चुका हूँ और मुझे अभी तक बहुत सारों के होमवर्क मिले हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं, ओके, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे स्कूल ओपन होंगे, जो स्टूडेंट के मुझे सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलेंगे उससे मेरी तरफ से मैं एक ट्रीट दूंगा। मतलब क्या है कि अगर जो इस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा होमवर्क मुझे मिलेंगे, मैं उसे स्कूल ओपन होने के बाद में एक ट्रीट दूंगा मेरी तरफ से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक सबसे ज़्यादा होमवर्क मुझे किसके मिले हैं। तो अभी तक सबसे ज़्यादा मुझे होमवर्क मिले हैं 7th A क्लास के अग्रिम जैन के। ओके, सबसे आगे अग्रिम जैन चल रहे हैं। अगर आपको मुझसे ट्रीट चाहिए तो आपको मुझे होमवर्क सेंड करना होगे, और होमवर्क भी कौन से, जो मैंने अभी तक दे चुका हूँ। ओके, अग्रिम ने अभी तक मुझे सारे होमवर्क सेंड करे हैं। ओके, कीप इट अप अग्रिम, वेल डन, गुड जॉब। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर होमवर्क ऑल्सो। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।